टुडे वी विल स्टडी अबाउट ईवन रिएक्शन। आज हम ईवन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। इस उदाहरण में 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन जब वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पर दो कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है। यहाँ बी आर नेगेटिव के रूप में हटा और यहाँ से H प्लस वाटर के साथ कंबाइन होने पर H3O पॉजिटिव दे रहा है। In this example, 2 bromo 2 methyl propane when reacts with water it forms 2 methyl propene. There is formation of double bond between these two carbon atoms by the loss of H plus from this carbon which is combining with water to give H3O positive, and Br is eliminated as Br negative. The even reaction, like the SN1 reaction, involves a carbocation intermediate. SN1 अभिक्रिया की तरह even अभिक्रिया में कार्ब धनायन मध्यवर्ती बनता है। यहाँ क्रिया विधि में देखें, यह एल्काइल हैलाइड लिया है। यह एल्काइल हैलाइड पहले विघटित होकर मंद पद में कार्ब धनायन दे रहा है और एक Br नेगेटिव बना रहा है। इस बीच वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है और फिर तीव्र पद द्वारा किनारे वाले कार्बन से H प्लस किसी क्षार द्वारा हटा लिया जाता है और इन दो कार्बनों के बीच में द्विबंध आ गया है। इस तरह से H3O पॉजिटिव बना और ये 2 मिथाइल प्रोपीन। In the mechanism of even reaction, the alkyl halide first it dissociates to form carbocation and a Br negative ion. This is occurring by a slow step. In the slow step, we are getting a carbocation and a Br negative ion. The H plus from this carbon is eliminated in the fast step by the base. In the base removes the beta proton and forms this alkene having double bond between these two carbon atom. यहाँ मंद पद से पहले केवल एक ही क्रियाकारक एल्किल हैलाइड है, अतः अभिक्रिया की दर केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करेगी। As before the slow step there is only one reactant, alkyl halide, so the rate of reaction will depend only on one species, that is alkyl halide. काइनेटिक्स गतिकी, इसमें अगर हम अभिक्रिया की दर देखें तो K इंटू एल्काइल हैलाइड, केवल एल्काइल हैलाइड की सांद्रता पर अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, अतः यह यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन है जिसकी कोटि 1 होगी। द रेट ऑफ द रिएक्शन is K into alkyl halide concentration. As the rate is depending on the concentration of only one species, that is alkyl halide, so it is unimolecular reaction and its order is 1. The major product in an even reaction is generally the more substituted alkene. even अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद साधारणतः अधिक प्रतिस्थापी एल्कीन होगी। इस उदाहरण में देखें 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन when it is reacting with water it is forming 2 methyl 2 butene as the major product and 2 methyl 1 butene as minor product, H3O positive and Cl negative. इस उदाहरण में 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन जब वाटर से रिएक्ट करता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन प्राप्त होती है और 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन भी कम उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा और H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इन दोनों एल्कीन में अधिक स्थायित्व 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन का है क्योंकि यहाँ द्विबंधित कार्बन परमाणुओं पर 3 प्रतिस्थापी समूह हैं, जबकि 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन में द्विबंधित कार्बन परमाणुओं पर केवल 2 प्रतिस्थापी समूह हैं। अधिक प्रतिस्थापी समूह होने पर
यह एल्कीन अधिक स्थायी है, अतः अधिक मात्रा में बनती है। In the products, if we see that 2-methyl-2-butene is having 3 alkyl substituents on the double bonded carbon atoms, whereas there are 2 alkyl substituents in 2-methyl-1-butene. So the stability of 2-methyl-2-butene is more, as there are more alkyl substituents on the double bonded carbon atom than the stability of 2-methyl-1-butene having less number of alkyl substituents on the double bonded carbon atom. Therefore 2-methyl-2-butene is the major product. Because the even reaction forms a carbocation intermediate, we need to consider carbocation rearrangement. इवन अभिक्रियाओं में कार्बधनायन मध्यवर्ती बनता है, अतः कार्बधनायन के बनने पर उसमें पुनर्विन्यास भी हो सकता है। क्यों होता है यह पुनर्विन्यास? यह अधिक स्थायी कार्बधनायन के बनने के लिए पुनर्विन्यास हो सकता है, जो कि 1,2 मिथाइल शिफ्ट या 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के द्वारा होगा। Why this rearrangement take place in carbocation? Because more stable carbocation is formed by 1,2 methyl shift or 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। इस उदाहरण में देखें 3 क्लोरो 2 मिथाइल 2 फिनाइल ब्यूटेन when it is reacted with methanol, see the secondary carbocation is being formed by removal of this Cl. This type of 2-degree carbocation is being formed. Then there will be a methyl shift from this carbon to this, so that the carbocation develops on tertiary carbon. 1,2 methyl shift take place from this carbon to the carbocationic carbon. In this way, in this rearrangement step, we are getting a 3-degree carbocation which is more stable. Then there is removal of proton from this carbon and formation of double bond between these two carbon. In this way 2-methyl 3-phenyl 2-butene is the product formed in this. इस उदाहरण में 3 क्लोरो 2 मिथाइल 2 फिनाइल ब्यूटेन जब मिथेनॉल से अभिक्रिया किया जाता है तो ये Cl के हटने से द्वितीयक कार्बोनायन प्राप्त होगा। क्योंकि द्वितीयक कार्बोनायन से तृतीयक कार्बोनायन अधिक स्थायी है, अतः पास वाले कार्बन से मेथिल का शिफ्ट होना इस कार्बन पर होगा, जिससे कि तृतीयक कार्बोनायन बन पाए। 1,2 मैथिल शिफ्ट से यहाँ पर तृतीयक कार्बोनायन बन गया और यह द्वितीयक कार्बोनायन की तुलना में अधिक स्थायी है। फिर निकटवर्ती कार्बन से H+ के निकलने पर यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध बन गया, अतः उत्पाद 2 मिथाइल 3 फिनाइल 2 ब्यूटीन प्राप्त होगा। इसी तरह से इस एग्जाम्पल में देखें 4 ब्रोमो 1 पेंटीन। अब जहाँ Br है उस कार्बन को हम अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, है ना। जब Br हटता है उस कार्बन पे से तो इस तरह से सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना, द्वितीय कार्बोनायन बना। लेकिन यदि हम पास वाले कार्बन पे से H की शिफ्टिंग 1 से 2 पे कर दें, इस तरह से 1 2, तो ये सेकेंडरी एलाइलिक कार्बन बन जाएगा। क्योंकि यहाँ एलाइलिक कार्बन मतलब से डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, और इसकी स्टेबिलिटी ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन से अधिक होती है। इस तरह से यहाँ से H इस पास वाले कार्बन पर शिफ्ट हुआ और पॉजिटिव चार्ज एलाइलिक कार्बन पर आ गया। ये देख रहे हैं एलाइलिक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। और एलाइलिक कार्बन किसे कहते हैं? डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन को एलाइलिक कार्बन कहा, और इसमें अनुनाद के द्वारा अधिक स्थायित्व है, अतः सेकेंडरी एलाइलिक कार्बोकैटायन बनेगा। और फिर निकटवर्ती कार्बन से एक H हटने पर इस तरह से 1,3 पेंटाडाइन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। इन दिस एग्जाम्पल 4 ब्रोमो 1 पेंटीन, by removal of this Br we are getting a secondary carbocation, and there will be 1,2 hydride shift from the nearby carbon to the secondary carbon, carbocationic carbon. In this 1,2 hydride shift we will develop a
secondary allylic carbocation, which is more stable as compared to secondary carbocation. Then by removal of proton from the adjacent carbon, there will be formation of double bond, and the main product formed will be 1,3 pentadiene.